السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوشامدید۔ میں ہوں آمنہ اکرم، میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں بات ہوگی۔ انقلاب دہلیز پر، معاملات لانگ مارچ تک، لندن میں کیا تیاری؟ راشن کے بجائے موت، بھوک، افلاس، گندم خراب، ایم کیو ایم کیوں بھڑکی؟ اور کراچی میں بھرپور پریکٹس۔ سب سے پہلے بات بڑے بیان کی، انقلاب ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے، پرامن انتخاب کے ذریعے راستہ فراہم کیا جائے۔ پنجاب کی کابینہ سے ملاقات کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو، کہا پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کامیابی تحریک انصاف پر عوامی اعتماد کا اظہار ہے۔ پنجاب کے عوام تحریک انصاف سے حقیقی آزادی کے ایجنڈے کی تکمیل کی توقع کر رہے ہیں۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جلد انتخابات کی جانب بڑھنا ہے۔ فوری انتخابات تحریک انصاف کی ضرورت نہیں، ملک کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے۔ عباس، بتائیے گا اس ملاقات میں چیئرمین تحریک انصاف کا مزید کیا کہنا تھا؟ دیکھیں، عمران خان نے اہم دن گزارا ہے، بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ پنجاب کی صوبائی کابینہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں انتظامی اور سیاسی امور پر تفصیلی طور پر بات چیت کی گئی۔ ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کابینہ ارکان کو پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی پر بھی مبارکباد دی ہے۔ اور سب سے اہم بات آج انہوں نے کی ہے کہ پرویز الہی ایک عملی سیاستدان ہے، ہم نے ان کو بھرپور ساتھ دینا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کی کابینہ اور پارلیمانی پارٹی کی آزادی کے موقف پر عوام کے ساتھ انتخابات تحریک انصاف کی ضرورت نہیں بلکہ ملک کی ضرورت ہے۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جلد انتخابات کی جانب بڑھنا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انقلاب ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے، پرامن انتخابات کے ذریعے یہ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ اور یہ بڑا کلیئر موقف بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی بات اور جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ عوام کے سامنے ہوں گے، میڈیا کے سامنے ہوں گے، بیک ڈور سے بند دروازوں میں کوئی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کا بھی کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی اس حوالے سے۔ یہ ایک اہم اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور مارچ کے حوالے سے تمام صوبائی کابینہ اور دیگر جو تنظیمیں ہیں تحریک انصاف کی، ان کو متحرک رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ مسائل سے نکلنے دھل انتخابات ہیں۔ عباس شبیر، اس حوالے سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ملک کی موجودہ صورتحال انتخابات یا انقلاب کی طرف جائے گی؟ امید ہے معاملہ لانگ مارچ تک نہیں پہنچے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا اظہار خیال، کہتے ہیں پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن کی خواہش صرف مولانا کو ہے، جن کے پاس کمیونیکیشن کی وزارت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتخابات کی طرف جائے گی یا انقلاب کی طرف جائے گی، درمیان کا راستہ نہیں۔ بات لانگ مارچ تک جائے گی یا نہیں جائے گی؟ امید تو ہے نہیں جائے گی۔ انتخابات ہیں، یہ پاکستان کا زیادہ اہم مسئلہ ہے پی ٹی آئی سے۔ صرف مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے، میرا خیال ہے مولانا صاحب کو جب سے کمیونیکیشن منسٹری ملی ہے ان کا تو دل ہے کہ ساری عمر ہی وہ ماشاءاللہ رہ جائے۔ کیا پاکستان کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔ کنوکٹڈ کرمنل کرے گا، جو بقول خرم دستگیر نے آج کہہ دیا ہے، اس سے ادارے کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں کہ ان سے جو عزت اور احترام کن اقدامات سے بڑھے گا، کن اقدامات سے کم ہوگا، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں۔ اطلاعات سے بیگانہ لاکھوں افراد کا نہیں کوئی ٹھکانہ، اور شہباز کے لیے ضروری مفروض کو منانا۔ عوام کو سیلاب کے رحم و کرم پر چھوڑ کر شہباز شریف لندن پہنچ گئے۔ نااہلی سے ملکی معیشت کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا اور ولایت کو گلے لگا لیا۔ غریبوں کا دم بھریں گے، دیس کے فیصلے پردیس میں کریں گے، آن جہانی ملکہ کی رسومات میں بھی شرکت کریں گے۔ شہباز شریف نے عوام کی ایک نہ مانی، عوام سیلاب سے بے حال، وزیر اعظم کو نہیں رہا خیال۔ سیلاب متاثرین کا خیال کیا، نہ ہی ان کی داد رسی کی۔
अवाम को सैलाब, महंगाई और डेंगू के रहमो करम पर छोड़कर वज़ीर आज़म लंदन रवाना हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। भारतीय सूट और बूट पहनकर हेलीकॉप्टर से नाम नेहाद दौरे किए, फोटो सेशन कराए, जाली एक्शन किए और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हकीकत में मुतासरीन को न इमदाद मिली न इनके हालात बदले। हमको वज़ीर आज़म कुछ नहीं दिया, हमसे पूछा भी नहीं। 2 कलाक बैठा बड़े बड़े अमीरे के साथ, फिर चला गया। तरीन सूरत हाल में शहबाज शरीफ के लिए ज्यादा अहम ठहरा मलिका बरतानिया के आखिरी रसूमात में शिरकत करना। पाकिस्तानी अवाम को एक नहीं बल्कि कई आजमाइशों का सामना है। सैलाब, भूख, फसलों की तबाही, घर बार तबाह, मईशत की खस्ता हाली, डेंगू और गुर्बत, इन तमाम मसाइल से नजरें चुराते शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। अवाम का कुछ न सोचा। छोटे मियाँ बड़े मियाँ से पूछे बगैर कुछ नहीं करते, इसलिए दोनों सुलह मशवरे करेंगे। देश के फैसले पड़ते इसमें होंगे, जिसमें मफरूर की बात की अहमियत ज्यादा होगी। एक मफरूर सजा याफ्ता मुजरिम और एक जमानत पर रिहा फर्द जुर्म के मुलजिम को मुल्क के अहम ओहदों पर तैनाती का कोई इख्तियार नहीं। पीटीआई रहनुमा हसन खावर की ट्वीट, कहा कि ऐसा करने से न सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का बचा कुचा एतबार भी खत्म हो जाएगा। पहले ही रजीम चेंज की वजह से बहुत से ममालिक और आलमी इदारे पाकिस्तान पर एतमाद करने से गुरेज कर रहे हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब को गैर इस्तेमाल शुदा सरमाए को माकूल सरमायाकारी में ढालकर आमदन बनाने की राह हमवार करने का काम सौंप दिया गया। मुल्क की मईशत को 600 अरब रुपए से ज़ायद सरमाया हासिल करना होगा। मंसूबे की तफसील बताते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के पहले सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब में 100 से ज़ायद अमूमी इमारतों की गुंजाइश होगी। अमूदी तामीरात के मुस्तकबिल के पेश नज़र लाहौर के मेन बुलेवर्ड में ज़मीनी काम का आगाज़ अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब को गैर इस्तेमाल शुदा सरमाए को माकूल सरमायाकारी में ढालकर आमदन बनाने की राह हमवार करने का काम सौंपा गया है। ऐसे मंसूबों को पंजाब के दीगर अजला तक फैलाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नैब तरामीम कल अदम होंगी। हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंसेस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह बहाल करेगी। शेख रशीद का दावा, ट्वीट किया कि हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत कम नहीं करने दे रहा। मफाहमत या मज़ाहमत का फैसला होने वाला है। नैब तरामीम कल अदम और करप्शन रेफरेंसेस बहाल होंगे। शेख रशीद ने NRO 2 से मुताल्लिक दावा कर दिया। शेख रशीद ने ट्वीट किया कि हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंसेस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह बहाल करेगी। 70 वज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। 21 वज़रा बेमहकमा हैं। शेख रशीद ने लिखा कि PDM ने कौम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया, ये अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। टूट गए, वो सिर्फ अपने हलकों में नहीं जा सकते। शेख रशीद ने मजीद लिखा कि बिलावल पाकिस्तान में बतौर मेहमान अदाकार आते हैं, दफ्तर नहीं जाते। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। नैब में अरबों रुपए के मुकदमात खत्म हो गए। अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम हो गया। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में नैब से बच निकलने वालों की कहानी सुना दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि अवाम इस अजीम डकैती को नाकाम बनाए, हकीकी आज़ादी हासिल करे, चोरों और डाकुओं के इस गैंग को वापस कटहरे में लाने के लिए बाहर निकले। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि अवाम का चोरी और लूटा हुआ पैसा खाया और हजम कर लिया गया, लेकिन वक्त जल्द आने वाला है जब इन सब चोरों से हिसाब लिया जाएगा। इसके लिए अवाम को बाहर निकलना होगा। और जामशोरों में मनपसंद अफराद को इमदादी सामान की तकसीम, हजारों सैलाब मुतासरीन ने कोटरी में धरना दे दिया। DC और बल्दियाती हुकाम पर खुदबुर्द का इल्जाम आयद कर दिया। शुरका का कहना था कि शहर में गंदगी का ढेर है, पानी के तालाब हैं, अवाम का जीना मुहाल हो गया है। पसंद अफराद को इमदादी सामान की तकसीम, सैलाब मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जामशोरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अवाम जी ताकत ये करे उए करप्ट टोले जा नासर इन रस्तन ता भजी वियान, पर तव्हां ॾिठो हूंदो त ही सॼो रोड किथे ॿ किथे 4 किथे 8 उन करप्ट टोले जा माण्हू तव्हांखे उन्हनि गटरनि ते बीठल नज़र ईंदा। मुज़ाहिरीन ने कोटरी के मरकजी
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। चौक पर धरना दे दिया। डीसी और बल्दियाती हुक्काम पर खुर्द बुर्द का इल्जाम आयद कर दिया। जो टेंट है वो यहाँ पे जो वडेरों ने अपने उताकों पे रखा हुआ है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना और उनको सबका कसूरवार यहाँ के जो MP है और यहाँ पे जो उनका ये करप्ट टोला है वो है। शुरका का कहना था शहर में गंदगी का ढेर है, पानी के तालाब हैं, आवाम का जीना हराम हो गया है। हमारा मुतालबा ये है हमारे शहर को क्लीन किया जाए और हमारे को जीने का हक दिया जाए। पूरे महीने से हम जिल्लत से गुजर रहे हैं, ना नमाज के कपड़े हमारे महफूज हैं, हम कारोबार कर सकते हैं, कारोबार हमारा तबाह हो गया, गाहक चढ़ते ही नहीं, रास्ता ही नहीं मिलता, तो रास्ता मिलेगा तो गाहक हमारे पास आएगा। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कोटरी को पेरिस बनाने वालों ने मुहिंजो दड़ो बना दिया है, शहर की सफाई करके हमें जीने का हक दिया जाए। में सैलाब से हौलनाक तबाही, मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सैलाब के बाद सेहत के बहरान ने जन्म ले लिया है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़ी हैं। सिंध हुकूमत के तमाम तर दावों के बरक्स मुतासरीन को सेहत की सहूलियात फराहम ना की जा सकी। मुतासरीन परेशान हैं, कहते हैं बीमारियों के सिवा हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुस्तकिल बुनियादों पर खाना फराहम किया जा रहा है और ना ही राशन तकसीम किया गया है। सूबा सिंध में सैलाब, हर तरफ पानी मगर प्यासे लोग। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। मुसीबत में घिरे मुतासरीन मजीद परेशानियों का शिकार। मुतासरा इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो और जल्दी अमराज तेजी से फैलने लगे। बच्चे बड़े सभी मुतासर होने लगे। अस्पतालों में मरीजों का तांता बन गया। अस्पतालों में अद्वियात हैं, ना इलाज की बेहतर सहूलियात। हुकूमत ने जहाँ मेडिकल कैंप्स लगाए वहाँ भी सूरत हाल अबतर। डॉक्टर्स मौजूद नहीं, डिस्पेंसर दवाएं दे रहे हैं, दरख्तों से लटकाकर ट्रिप लगाई जा रही है। ठट्टा दादू, हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, मिटियारी समेत कई अजला में मुतासरीन के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। हुकूमती दावों के बरक्स मुतासरीन सहूलियात से महरूम हैं। परेशान हाल मुतासरीन कहते हैं बीमारियों से लोग जान से जा रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें खाना और ना ही राशन तकसीम किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत की आलमी सतह पर रुसवाई। बैरूनी दुनिया और बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें एतबार के लिए तैयार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने $16 करोड़ की अपील की, लेकिन सिर्फ $3 करोड़ 85 लाख की नकद रकूम और इमदाद मौसूल हुई। फ्लैश अपील से मिलने वाली रकूम और इमदाद की तकसीम बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा और UN एजेंसीज करेंगी। हुकूमत की आलमी सतह पर रुसवाई। तवक्को के मुताबिक इमदाद मिली, ना नकद रकम हाथ आई। बैरूनी दुनिया और बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें करप्ट शहबाज शरीफ और उनकी काबिज हुकूमत पर एतबार के लिए तैयार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने $16 करोड़ की फ्लैश अपील कर दी, लेकिन सिर्फ $3 करोड़ 85 लाख की नकद रकूम और इमदाद मौसूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हुई फ्लैश अपील के जरिए मिलने वाली इमदाद पाकिस्तानी हुकूमत के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा को फराहम की जा रही है। रकूम और इमदाद तकसीम बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा और UN एजेंसियां करेंगी। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अक़वाम मुत्तहिदा जूलियन हारिस ने बताया कि फ्लैश अपील के रद्द अमल में इमदाद की फरहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तानी हुकूमत को इस पैसे के इस्तेमाल में एहतिसाब और शफाफियत यकीनी बनाना होगी। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।